Welcome to the new class. Today's topic is file handling. This is the first part related to file handling. Here we will discuss about the basics of file handling in C. That means what is the need of file handling, introduction to files, if files are there, how they are being handled in terms of streams. That means streams in file handling and their role. And finally, what are the basic types of files we used in file handling. The categories are text file and binary file. To sum up this whole concept, I have used these much resources: a book written by Yashwant Kanitkar, that is Let Us See, a book by Balagurusamy, that is Programming in NCC, a book by Ajay Mittal, Programming in C, a Practical Approach, and some content from Wikipedia. Let's start. Basics of file handling, that is what is the basic need of external files. Today I will use a blend of language, Hindi as well as English, because some of my viewers asking me frequently that, sir, please explain topics in both the language so that it will be better for us to understand it. So today I will use a blend of it. If you like it, please show your thumbs in a comment section so that if it is successful, I will continue. Otherwise, I will withdraw this bilingual concept. If a program deals with input-output of large volume of data, the console input-output is not convenient and consumes a lot of time. Moreover, the entered data in this case is stored in variables and arrays. Therefore, the permanency of data can be stored on the disk by making the use of files. मतलब ये कि अगर हम किसी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे यूज हो रहा है, तो अगर हम प्रोग्राम के साथ ही इस डेटा को रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती. इससे हमारे पास जो डेटा की परमानेंसी है वो भी हर्ट होती है और प्रोग्राम का साइज अननेसेसरी लार्ज होता है. और इसके साथ इसके दो ड्रॉबैक्स भी हैं जिसको आगे हम लोग एड्रेस करते हैं. Introduction to files. Basically, a file is a collection of data stored in a secondary storage device like hard disk. तो हम फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हैं अपने मेन प्रोग्राम से अलग. Why these files? A file is basically used to solve real life applications having large amount of data, and in such situation the console oriented IO operation poses two major problems. What are these two major problems? First one, it becomes cumbersome and time consuming to handle huge amount of data through terminals. मेरे लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर मैं किसी लार्ज डेटा सेट को किसी सी प्रोग्राम के थ्रू हैंडल करूं. सपोज मेरे पास 2 लाख कस्टमर्स का डेटा है और इन 2 लाख कस्टमर्स के लिए मैं कोई एरे बना रहा हूं या मैं यूज़र से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू उसको रीड कर रहा हूं, तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि मैं इतने रिकॉर्ड्स को हैंडल करूं. सेकेंड, इसके साथ जो दूसरी प्रॉब्लम आएगी वो ये कि व्हेन डूइंग IO ऑपरेशन यूजिंग टर्मिनल, the entire data will be lost when either the program is terminated or program is turned off. तो अगर मैं IO ऑपरेशन टर्मिनल के थ्रू कर रहा हूँ तो डेटा की परमानेंसी नहीं रहती, वो प्रोग्राम के साथ ही खत्म हो जा रहा है. अब प्रोग्राम या तो टर्मिनेट होगा या हम उसको प्रोग्राम को सक्सेसफुली क्लोज करेंगे. दोनों ही केस में डेटा मेरा वहीं पे विड्रॉ हो गया. लेकिन मुझे तो डेटा परमानेंट चाहिए क्योंकि 2 लाख का यूज़ है, 2 लाख डेटा बेस मेरे पास अवेलेबल है यूज़र्स का. इसको मुझे एक प्रोग्राम में भी ज़रूरत हो सकती है, इसको किसी दूसरे प्रोग्राम में भी ज़रूरत हो सकती है. तो जो ऊपर वाली बात है फिर से उसको देखते हैं कि मेरे लिए जो ज़रूरी है वो ये कि वो सेकेंडरी स्टोरेज में रहे और उसमें ये तो जो मेजर इश्यूज़ हैं वो दोनों इश्यूज़ उसमें ना आए. अल्टीमेट मेरे पास क्या हुआ? Therefore, it becomes necessary to store the data on permanent storage and access whenever necessary without destroying the data.
तो मेरे पास डेटा हमेशा परमानेंट स्टोरेज पे बना रहे और मैं जब भी चाहूँ उसको यूज़ कर पाऊँ विदाउट एनी डिस्टरबेंस, और जब भी मेरे पास डेटा दोबारा से यूज़ हो रहा है तो पहले जो डेटा था वो वैसा ही आए, उसमें कोई डिलीशन या अपडेशन ना हो। नेक्स्ट, स्ट्रीम्स इन फाइल हैंडलिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रीम्स? अब आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक एंड पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है प्रोग्राम को, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है प्रोग्राम को, और दूसरे एंड पे रखा हुआ है डेटा को। डेटा किस में है? सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क में। अब आप इसको ऑब्जर्व करने जाएंगे तो यू कैन सी दैट इट इज वन डायरेक्शनल। दैट मीन्स मेरा प्रोग्राम जो है डिस्क में लिखे हुए कुछ डेटा के साथ ऑपरेशन करना चाह रहा है, तो मैं डिस्क पे या तो डेटा को डालूंगा या डिस्क से डेटा को लूंगा। तो ये जो मेरे पास डायरेक्शनल फ्लो जो बन रहा है, दिस इज स्ट्रीम। A stream can be thought as a buffer to which bytes flow from a device during I/O operation. Bytes from the stream are made available to device. ये devices कौन सी हो सकती हैं? Those devices may be printer, screen, disk, network connection, etc. So there is my program. That program writes some data to buffer, and this buffer writes data from buffer is written to the disk file. This buffer writes data to disk file. So finally, a stream is a high level concept representing a communication channel to a data, file or a device. Before data can be read from or written to a file, the file must be open. Opening a file associates a stream with it. तो मुझे डेटा को जब भी किसी फाइल पे राइट करना है या किसी फाइल पे रीड करना है, तो मेरे पास वो फाइल तो कनेक्शन में आनी चाहिए ना। अब फाइल कनेक्शन में आए तो मैं कैसे काम करूंगा? इट शुड बी ओपन टू मी। मैं किसी भी वन फाइल पे काम नहीं कर सकता हूँ। जैसे एनालॉजी में मैं अगर अपने ऑफिस पे किसी डेस्क की फाइल को देखूं, अगर वो फाइल बंद है तो मैं ना तो उससे कुछ पढ़ सकता हूँ ना उसमें कुछ लिख सकता हूँ। तो उसमें कोई डेटा मुझे चाहिए, या उस डेटा को मुझे इन्हेंस करना है या उसे अपडेट करना है, डिलीट करना है, किसी भी सेंस में वो डेटा मेरे पास रीडेबल होना चाहिए। तो मीन्स कि मुझे वो फाइल पहले ओपन करनी पड़ेगी, तब मैं उसको ऑपरेट कर पाऊंगा। ये जब ओपन करने जाते हैं तो हमको सी ने कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स भी दी हुई हैं, उन्हीं के थ्रू हम ओपनिंग और क्लोजिंग को हैंडल कर पाते हैं। ये जो स्ट्रीम्स दी गई हैं इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स। When a program is executed, five standard streams, namely std_in, which is called standard input, std_out, standard output, standard error, standard auxiliary, and standard printer, which is called std_prn, are already open and available for use throughout my work. तो मैं जितनी देर भी फाइल हैंडलिंग कर रहा हूं, ये 5 स्ट्रीम्स जो हैं ये मेरे पास हमेशा एलोकेटेड रहती हैं और ये अपना रोल प्ले करते रहती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक एक का पर्पस क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ std_in, std_out और सो। तो विल स्टार्ट विद std_in। स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट इज अ स्ट्रीम फ्रॉम विच द प्रोग्राम रिसीव्स इट्स डेटा। इनपुट है, ये इन करने के लिए, प्रोग्राम में डेटा को लाने के लिए है। तो इसका रोल क्या हो गया मेरे पास? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम फ्रॉम विच द प्रोग्राम रिसीव्स द डेटा। ये डेटा को रिसीव करने के लिए है। स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट ये रिवर्स है स्टैंडर्ड इनपुट का। स्टैंडर्ड इनका std_in। Standard output is a stream where a program writes its output to data. इसके हेल्प से हम डेटा को राइट करते हैं। स्टैंडर्ड एरर, ये मेरे पास दोनों समय अवेलेबल होगा ये स्ट्रीम, चाहे मैं डिवाइस पे रीड कर रहा हूँ या डिवाइस पे राइट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड एरर इज बेसिकली एन आउटपुट स्ट्रीम यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू रिपोर्ट एरर मैसेजेस और डायग्नोस्टिक्स। It is a stream independent of standard output and can be redirected
सेपरेटली। ये मेरे पास हमेशा इंडिपेंडेंटली अवेलेबल है, उनको रिडायरेक्ट हम अलग से कर सकते हैं। नो डाउट द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर कैन ऑल्सो बी डायरेक्टेड टू द सेम डेस्टिनेशन। स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर का हम डायरेक्शन एक रख सकते हैं। जैसे मैं किसी फाइल में कोई डेटा राइट कर रहा हूँ, या तो वो सक्सेसफुल राइट हो रहा है तो डेटा आ गया, अगर वो अनसक्सेसफुल राइट हो रहा है तो उसकी जगह पे एक एरर मैसेज आ गया। तो चाहे मैं स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करूँ या स्टैंडर्ड एरर की बात करूँ, मेरे पास फाइल में आउटपुट के तौर पे या तो एक्चुअल वैल्यू आ रही है या उसका एरर मैसेज आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नो डाउट स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर कैन ऑल्सो बी डायरेक्टेड टू द same destination. Now the next stream is standard print, that is standard PRN. The stream std PRN is associated with the printer. अगर मुझे कोई डेटा प्रिंटर पे एसोसिएट करना है तो मैं std PRN को यूज करता हूँ. Then last one is std AUX auxiliary. The stream std AUX is associated with an auxiliary port, that is serial port COM1. अगर सपोज मुझे अपने प्रोग्राम में किसी नेटवर्क डिवाइस से या किसी नेटवर्क से कुछ डेटा चाहिए जो किसी और टर्मिनल से आ रहा है, तो अब मुझे यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रीम है वो कोई कम्युनिकेशन पोर्ट चाहिए, और वो कम्युनिकेशन पोर्ट मेरे पास सी में ऑक्सिलरी पोर्ट के तरीके से एक्सेस होगा। जैसे यहाँ पे मैंने सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन पोर्ट 1 एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे को क्या डायरेक्शन मिलता है कि मेरे पास एक ये सिंपल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है ये मेरे पास कोर एलिमेंट है। ये या तो कीबोर्ड से डेटा रीड कर रहा है तो उस समय स्ट्रीम यूज होगी मेरे पास std in, या फिर ये प्रोग्राम स्क्रीन पे आउटपुट शो कर रहा है तो मेरे पास स्ट्रीम जनरेट हो रही है std out, और या फिर रीड करने में राइट करने में कहीं से भी मेरे पास कोई ना कोई एरर जनरेट हो रही है, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए मैं जो स्ट्रीम यूज करूंगा दैट विल बी स्टैंडर्ड एरर। तो 3 स्ट्रीम्स बाय डिफॉल्ट मेरे पास हमेशा ही अवेलेबल रहती हैं, स्टैंडर्ड ऑक्स और स्टैंडर्ड PRN। इनको हम लोग ओकेजनली यूज करते हैं जब उनका पर्पस होता है। A stream is linked to a file using an open operation and disassociated or delinked from a file using a close operation. तो मुझे अगर स्ट्रीम जोड़नी है तो मैं उनको लिंक करूंगा, अगर डीलिंक करना है तो मैं उन स्ट्रीम्स को क्लोज करूंगा। We will see in our programs how this can be handled. Types of file handling. कितने तरीके की फाइल्स हम C में हैंडल कर सकते हैं? Those are basically 2 files. One is character based file, another is binary files, which has only those have only binary streams. So we can say that there are 2 types of files which can be handled through C program. First one is character oriented file handling, which is called basically used for text files. Another is binary oriented file handling, which is specially for binary files. तो अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या कहने के सेंस में डिफरेंस है। अगर मैं किसी वर्ड फाइल से कोई डेटा ले रहा हूं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो टेक्स्ट फाइल कहलाएगा, लेकिन अगर मैं किसी कम्युनिकेशन चैनल से कोई नंबर ऑफ बिट्स को रिसीव कर रहा हूं या मैं किसी इमेज को पढ़ रहा हूं तो इमेज और कम्युनिकेशन चैनल में जो डेटा अवेलेबल है वो हाई लेवल नहीं है, वो बाइनरीज में अवेलेबल है, वो बिट्स में अवेलेबल है। तो उन बिट्स और बाइट्स को अगर मैं यूज कर रहा हूं देन आई एम यूजिंग बाइनरी फाइल्स। ये दोनों ही तरीके की फाइल्स अगर मुझे यूज करनी है तो इसके लिए सी में पहले से बना हुआ एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है। उस स्ट्रक्चर के पॉइंटर के थ्रू हम लोग हमेशा इसको कॉल करेंगे और उस स्ट्रक्चर का नाम है फाइल। ये जो फाइल स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर and it is already defined in stdio.h. A text file stream is an ordered sequence of characters composed into lines terminated by a new line character. जैसा मैंने भी पीछे बताया आपको कि टेक्स्ट मेरे पास composed है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के, और जैसे ही वो न्यू लाइन या कैरेज रिटर्न आ रहा है उसके थ्रू हम नई लाइन को एंटरटेन कर रहे हैं।
The text streams are interpreted, so what the program sees can differ from what actually present in the file. Suppose ऐसा हो सकता है कि मैंने डेटा फाइल में केवल लिखा हो ABC, और मैं जब प्रोग्राम में उसको यूज करने जाऊं तो मैं उसको यूज कर रहा हूं द फाइल नेम इज ABC, द यूजर नेम इज ABC, द पर्सन नेम इज ABC, द क्लाइंट नेम इज ABC इज द सम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, whatever. दैट मीन्स जो डेटा है उसको हम किसी भी तरीके से अपने प्रोग्राम में इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग किया जा सकता है. A text file is a stream of characters that can be sequentially processed by computer in forward direction. अगर स्ट्रीम है तो स्ट्रीम के साथ जो पहले हम लोगों ने बात की, इट मस्ट फॉलो सम डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही होगा. टेक्स्ट फाइल के लिए जो डायरेक्शन क्रिएट होगा हम फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर तक फॉलो करेंगे, और जब मेरी फाइल एंड होगी तो उसमें मेरे पास लास्ट में EOF का सिंबल आएगा. EOF, this means end of file. इसी के थ्रू हम आगे काम करेंगे. तो कुछ और इस पे देख लेते हैं. बिकॉज टेक्स्ट फाइल्स ओनली प्रोसेस कैरेक्टर्स, दे कैन ओनली रीड और राइट डेटा वन कैरेक्टर एट अ टाइम. एक एक कैरेक्टर को भी लिख सकते हैं. इन अ टेक्स्ट फाइल ईच लाइन कंटेन्स आइदर 0 और मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स. तो मेरी लाइन जो होगी, जो मैं टेक्स्ट फाइल बना रहा हूं, उसमें एक लाइन में या तो 0 आएगा या 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं. इन अ टेक्स्ट फाइल ईच न्यू लाइन कैरेक्टर इज कन्वर्टेड टू अ कैरेज रिटर्न or a line feed character. Similarly, when data is read from a text file, each carriage return line feed character is converted into a new line character. तो मैं अपनी जो भी मेरे पास टेक्स्ट फाइल है उसमें कैरेज रिटर्न, एंटर की या लाइन फीड जिसको आप /n बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पास रीड ऑपरेशन के लिए नए कंटेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होती हैं. Now, second one is binary files or binary streams. Binary streams are uninterpreted. आपने देखा होगा उसका इंटरप्रिटेशन पॉसिबल था. बाइनरी स्ट्रीम्स को अनइंटरप्रेटेड बोल रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर बाइट्स ऑफ आर्बिट्ररी इंफॉर्मेशन विद नो ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स. मेरे पास इसमें कुछ आर्बिट्ररी बिट्स अवेलेबल हैं और वो बिट्स वैसे ही रहने वाली हैं, उसमें कोई अल्टरेशन हम नहीं कर सकते. जो है जैसा वो वैसा ही रीड होगा. Thus, what the program sees is exactly the same as what is actually present in a file. जो जहां जैसा डेटा अवेलेबल है, जो जहां जैसी बिट स्ट्रीम लिखी है वो वैसी ही समझी जाएगी, उसका कोई इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं किया जा सकता. So it does not require any special processing of data. So when we are working with binary files, no special processing is demanded. Typically used for reading and writing binary files such as graphic files, word processing files, communication files, or reading and writing to a modem. All is an example of binary files. Binary files store data in the internal representation format, like an int value will be stored in binary form as 2 or 4 byte value, etc. If it is 16-bit machine, 2 bytes will be there. If it is 32-bit machine, 4 bytes will be there. Just like text file, binary files also ends with EOF marker. EOF marker क्या था? End of file marker. तो इसमें भी हर फाइल के एंड में end of file marker आएगा. Binary files can be either processed sequentially or randomly. Now this is the second difference. आपने टेक्स्ट फाइल में देखा था, उसको प्रोसेस करने के लिए सीक्वेंशियल एक्सेस ही था. सीक्वेंशियल एक्सेस बताया फर्स्ट टू लास्ट, जिसके लिए डायरेक्शन फिक्स हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेकिन अगर ये बाइनरी फाइल है तो मैं उसको सीक्वेंशियली भी यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, और रेंडमली भी एक्सेस कर सकता हूँ. दोनों ही तरीके से इसकी फाइल प्रोसेसिंग पॉसिबल है. In next session,
we will discuss what are the basic steps to write a program and what are the basic reading functions to write a program using file handling along with their basic examples. So in this lecture, we created a foundation. In next lecture, we will have a certain steps to handle a file handling procedures in C. Thank you.